Hello everyone. Hello, Welcome to hello Pinnacle everyone. Consultancy. In this session, we will discuss about ETABS. What is the importance of ETABS, and detailed discussion on various reasons given by ETABS software, as well as in depth we will discuss about SAFE 2016 as well as RCDC. By using different software, you will get different result. Okay, this is our highlighter. In this step by step, we will learn all the things. So we'll start with the basic overview of ETABS. So इसमें हम क्या करेंगे, ETABS का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम basic overview of ETABS and import AutoCAD file into ETABS. So first we will discuss about column positioning and the center line of our architectural plan, and then we will transfer this architectural plan into our ETABS, and then after we will start our work like modeling, analysis, design. जैसे ही हमारा इंपोर्ट का वर्क फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एनालिसिस करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे. So this is our lecture first. Then this is our lecture 2, second lecture. Import different structural grid system in ETABS. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चरल ग्रेड्स होगी. पर्टिकुलरली दिस इज ओनली फॉर आवर प्रैक्टिस. So different grids are there. This is unequal grids, okay, and these unequal grids with radial system. So this is two highlighter. यहाँ पे आप देख सकते हो दो ग्रिड्स आपको मैंने इशू की है. मोस्टली 4 to 5 ग्रिड होती है जो आपको प्रैक्टिस के लिए यूज करनी पड़ती है. जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करके आपका गो थ्रू करोगे, तब आपको ETABS में और भी प्रोफिशिएंसी रहेगी ड्यूरिंग मॉडलिंग. प्रैक्टिकल इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फॉर द मॉडलिंग इट विल हेल्प यू. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडलिंग आपको ये डिटेल्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, हम सब आपको प्लानिंग्स वगैरह सब हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, आपको सिर्फ मॉडलिंग करना है, राइट. इन सेम वे हम आपको गाइड करेंगे. फर्स्ट स्टार्टिंग में हम सेम ग्रिड प्रिपेयर करेंगे, और देन लेटर हम आपको डिफरेंट टास्क असाइन करेंगे. तो आपको सेम ग्रिड्स प्रिपेयर करनी है. This lecture 3 and 4. Here draw shear force diagram, bending moment diagram for different beam and thrust. Understand axis system from ETABS. So in this session we will prepare our truss model in ETABS and verify with our actual result. तो इससे हम क्या करेंगे कि हमारा मॉडल और हमारा जो सॉफ्टवेयर है ETABS, उसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन प्रॉपर है कि नहीं,
वी कॉल एज ए वैलिडेशन। इससे हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करेंगे। लाइक इसमें यहाँ पे जो आपको रिएक्शन मिलेगा 4 किलोमीटर और यहाँ पे 4 किलोमीटर। सो जैसे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, एट द एंड ऑफ एनालिसिस हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। सो आउटपुट में हमें ये सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, हम वो चीज़ यहाँ पे कंसिडर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। दिस इज ट्रस्ट मॉडल एंड इन राइट साइड हियर दिस इज अ बीम मॉडल। ओके, then this is lecture 5, important command in ETABS during modeling and design। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट कमांड्स रहेंगे ETABS के ड्यूरिंग द मॉडलिंग, यहाँ पे वो सब डिस्कस करेंगे। लाइक दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम। दिस इज replicate command, merge join, edit frame, edit cell, and these all are very most important. So in subsequent lecture we will discuss all the things. Okay. So in later we will discuss about our read new live project architectural plan, provide column location and prepare center line plan for ETABS. So this is our lecture 6. We are going right now we are going to discuss about placement of column, like how to decide the placing of column and orientation of column. So हम अभी ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्सिक्वेंट आपको लेक्चर 7, ओके, लेक्चर 8 में आपको ये जो प्रेजेंटेशन है, लाइक डे बाय डे हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। ये जो एक सॉरी PDF शीट है मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट placement of column and orientation of column. This is like ये actually मैं आपको यही प्लान दिखा रहा हूँ। जस्ट 1 सेकंड। This is our final column position as per architectural and as per structural requirement. So, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉलम की साइज, ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करते हैं। okay? तो फर्स्ट हम एक बेसिक चीज से अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। This is column 1 and there is another column. Okay, now we are going to assign horizontal load from this shorter width and same thing for this larger width. Okay, so after assigning the load, जैसे हम यहाँ पे horizontal load लगाते हैं, सी आपका ये कॉलम आपको
इसका मैं आपको 3D व्यू बताता हूँ। आपका कॉलम इस तरह से होगा कुछ। ओके, कॉलम एंड आपको ये कॉलम में दिखा रहा हूँ यहाँ पे कॉलम 2। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे छोटी सेक्शन में लोड लगाया जिसकी विड्थ बहुत कम है। ओके, और यहाँ पे सेम लोड लगा रहे, कॉलम की विड्थ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू लॉन्गर फेस। और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, परपेंडिकुलर टू शॉर्टेस्ट स्पान। ओके, सो जैसे हम यहाँ पे लोड लगाएंगे द कॉलम विल ट्राई टू डिफ्लेक्ट। ओके, लाइक जैसे अभी इसकी ये कॉलम रेस्ट पे है, सो इट विल ट्राई टू बेंड, इस तरह से कुछ बेंड होने की ट्राई करेगा। ओके, और आप यहाँ पे लोड लगा रहे हो, इट विल बी ट्राई टू बेंड, कुछ इस तरह से बेंड करने की ट्राई करेगा। इस तरह से कुछ बेंड करने की ट्राई करेगा। सो डिस्कस ये करना है कि जैसे आप यहाँ पे लोड लगा रहे हो, अगर इसकी ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसकी साइज ज़्यादा रहेगी तब ये डिफ्लेक्ट बहुत कम करेगा। अगर ये जो परपेंडिकुलर साइज है, दैट मीन्स पैरेलल टू लोड, अगर ये विड्थ आपकी बहुत कम है तो वो क्या करेगा, इजीली आपको कॉलम को बेंड करेगा, इजीली कॉलम डिफ्लेक्ट करने की ट्राई करेगा। काइंड ऑफ स्टिफनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। जैसे ही आप यहाँ से लोड लगा रहे हो तो आपके पास कितने एरिया है, इतना प्लान एरिया है आपका, जो क्या करेगा आपके कॉलम को इजीली रेजिस्ट करेगा। बट यहाँ पे आप देखोगे केस 2 पे, तब क्या होगा, इसकी जो लोड के पैरेलल जो साइज थी वो बहुत कम है विड्थ, तो क्या करेगा आपका कॉलम इजीली बेंड होने की ट्राई करेगा, यहाँ पे मोमेंट भी ज़्यादा लगेगी और डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा लगेगी। सो हमें कॉलम की पोजीशन इस तरह से रखनी है कि जैसे आपके अर्थक्वेक लोड आएगा तो इजीली आपके बिल्डिंग रेजिस्ट कर पाए। सो इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, first thing is to provide a column location as per architectural and as per structural requirement. as per structural engineer आपको ये चीज़ इन डेप्थ और डिटेल में पता होनी चाहिए, राइट। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सब हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे आपको ये जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता चलेगा, ये जो डिफ्लेक्शन कितना लगेगा डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन कम रहेगा। So we'll discuss these things in subsequent lecture. Right now we need to check the position of column, like हम कॉलम की पोजीशन कैसे कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ पे कॉलम की पोजीशन होनी चाहिए। सो ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। ऑलरेडी इसकी डिजाइनिंग हमने प्रीवियस बैच में ही की है, आपको मैं मॉडल भी बताऊंगा इसका। कॉलम की पोजीशन कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। Okay, this is ground floor plan. First we will highlight only
the location of column. Okay, then we will try to provide orientation also. See, this is our staircase, and this is general toilet, and this is OTS, and this is a guest room. This is parking, and here some gardens, storeroom, and this is general attached toilet, and same this is opening. जस्ट वन सेकंड, मैं आपको इसके एलिवेशन बता रहा हूँ एक्चुअली। दिस इज काइंड ऑफ एलिवेशन। आपको इस तरह से, ये जो आपको गार्डनिंग पोर्शन आप देख रहे थे, तो यहाँ पे आपको गार्डनिंग मिलेगा। ये आपका स्टोर रूम, गार्डन एरिया आपका ये स्टोर रूम हो जाएगा। दिस इज पर्टिकुलर पार्किंग, ओके, एंड दिस इज आवर लिविंग रूम, and then that means a living room, तो बालकनी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बालकनी, किचन एंड पोर्च, kitchen and porch, okay, and second floor. This is our master bedroom. This is master bedroom and window and porch. Master bedroom, window, and this is our porch. This is our actual live project. So now we need to place the positioning of column. So first we will highlight the position of column. Okay. So as per our Indian code, जो हमारे लिफ्ट एरियाज होते हैं, स्टेयर एरियाज, जो इम्पोर्टेंस एग्जिट एरिया है, और जहाँ पे आपका हेवी लोड लगेगा, लाइक लिफ्ट, स्टोर रूम, स्टेयरकेस, कॉरिडोर, लाइक ये आपको यहाँ पे मिल रहा है कॉरिडोर आपका, ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्या रीजन है इसका, वो डिस्कस करते हैं। जब आपकी बिल्डिंग पे इमरजेंसी कुछ आएगी, सम फायर्स आर देयर, सम अर्थक्वेक फोर्स आर देयर, तब क्या करोगे? आप स्टोर रूम में से बाहर निकलने की ट्राई करोगे, टॉयलेट में से बाहर निकलने की, गेस्ट रूम में से, ग्राउंड फ्लोर है, दैट डजंट मीन यहाँ पे लोड नहीं कर रहा, यहाँ पे पब्लिक नहीं रहेगी। तो सेम यहाँ पे सब बाहर आने की ट्राई करेंगे। ओके, एट अ फर्स्ट फ्लोर आप बालकनी और लिविंग रूम पे खड़े हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आने की ट्राई करोगे। किचन पोर्च में से सेम यहाँ पे, बेड में से यहाँ पे। सो एट टाइम यहाँ पे आपको ज़्यादा लोड लगेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल रूम। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहाँ पे जो कॉरिडोर्स होते हैं हमारे, और हमारे जो स्टेयर्स एरिया हो गए, वहाँ पे आपको इस पर इंडियन कोड आपको ज़्यादा लोड लगाने पड़ेंगे। सो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, मेन बात करते हैं कॉलम की। जैसे यहाँ पे लोड ज़्यादा लगेगा इस पर्टिकुलर स्टेज पे, तब आपको यहाँ पे सब जगह पे आपको कॉलम्स रखने पड़ेंगे फॉर आवर सेफ्टी, ओके, एंड एज पर आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट। ओके, सो अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे एक कॉलम रखा, यहाँ पे दूसरा कॉलम, और यहाँ पे थर्ड कॉलम।
यहाँ पे हमने कॉलम असाइन नहीं किया बिकॉज यहाँ पे आपका बेड मिल रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको एक कॉलम रखा। देन सेम थिंग सब कॉर्नर्स पे रहेंगे, जैसे आप यहाँ पे राइट साइड पे देख रहे हो। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे किस तरह से कॉलम की पोजीशन करनी है। यहाँ पे आप देखोगे तो बीच में आपके कॉलम्स आ रहे हैं। सो देयर आर सम पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल रीजन। आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा प्लानिंग की जियोमेट्री सेम नहीं है फ्लोर वाइज। So at a time you need to place the column position look like this. So यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉलम की पोजीशन फिक्स कर दी। एट जो है हमारा बालकनी यहाँ पे बाहर निकल गई। मोस्टली सब आप ऐसे सोचो कि सर बालकनी में तो कॉलम विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारा आर्किटेक्चर प्लान देखोगे और एलिवेशन देखोगे, सो आपकी ये जो वॉल्स है सेम द लास्ट वन, यहाँ पे आपको वॉल्स आपकी साइड में आपकी वॉल्स आ रही है। सो वी कैन प्रोवाइड आवर कॉलम पोजीशन, राइट। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉलम रखा यहाँ एट द एंड ऑफ दिस पोर्च के दोनों साइड। फर्स्ट जगह पे यहाँ पे कॉलम निकलेगा, देन यहाँ पे कॉलम रखा और देन लास्ट यहाँ कर दो। बाय दिस मेथड आपको कॉलम की पोजीशन है इस तरह से एज पर आर्किटेक्चरल एज पर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट आपको कॉलम की पोजीशन करनी है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम। और पोजीशन के बारे में तो पता चला, अब ओरिएंटेशन कैसे रखते हैं, इसकी ओरिएंटेशन कैसे रहेगी। मोस्टली ओरिएंटेशन कैसे रखते हैं वो डिस्कस करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम डिपेंड ऑन स्पान ऑफ बीम। ओके, फर्स्ट मैं आपको डिस्कस बताऊँ यहाँ पे। आपको यहाँ पे दिखेगा गेज स्टोन, the span is 40 feet. So what we can do, we will provide a column look like this. यहाँ पे हमने कॉलम रखा। Okay, then next this is 12 feet 6 inch. So what we can do, यहाँ पे हमने इस तरह से कॉलम रखा। Okay, then same again यहाँ पे 14 फीट मिला। सो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो आपकी बीम की लॉन्गर साइड थी वहाँ पे हमने कॉलम रखा। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर रखा। ओके, मोस्टली आपके कॉलम इस तरह से होने चाहिए, सब एक डायरेक्शन नहीं होने चाहिए, अल्टरनेटिव होने चाहिए। दैट मींस डायगोनली सेम होने चाहिए। टू कॉलम ओरिएंटेशन सेम एंड दिस टू कॉलम ओरिएंटेशन सेम। सो दिस इज वन मेथड दैट आपको इस तरह से कॉलम की प्लेसिंग करनी है। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से हमने कॉलम 4 कॉलम्स की लोकेशन फाइनलाइज की। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस 2 कॉलम and about this 3. So फर्स्ट पोजीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कॉलम की साइज इस तरह से रखूंगा। So the distance between
दिस 2 कॉलम्स इज वेरी लेस, सो यहाँ पे नीड नहीं है। सो हमने क्या किया यहाँ पे, ओरिएंटेशन हमने कॉलम के चेंज कर दी, लाइक दिस। एंड जैसे हमने बात की कि लिफ्ट, स्टेयर, वो सब इमरजेंसी पॉइंट होते हैं, तो हमने एक यहाँ पे कॉलम की पोजीशन रखी, ओके। एंड इस तरह से हमने ग्रिड सेट की, ओके। जिस यहाँ पे हमने बात कर ली, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कॉलम पोजीशन इस तरह से हमें रखनी पड़ेगी, ओके। और सेम यहाँ पे आप जो बीच में आप कॉलम रख रहे हो उसकी पोजीशन भी सेम रहेगी। यू कांट प्रोवाइड कॉलम्स लुक लाइक दिस बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रक्चरल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ओके। आपको आपकी जो वॉल्स के पैरेलल है आपको कॉलम्स रखने हैं। इट शुड बी नॉट गिव एनी ऑब्स्ट्रक्ट इन पर्टिकुलर रूम। तो बाय दिस मेथड आपको यहाँ पे कॉलम की प्लेसिंग करनी है, ओके। सो राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लेसमेंट ऑफ कॉलम। सो इस तरह से आप कॉलम की प्लेसिंग कर सकते हो। नाउ इसी मॉडल को हम ETS पे देखते हैं। तो our ETFs model, that means our ETFs startup, okay? जैसे ही आप यहाँ पे ETFs ऑन करोगे आपको इस तरह से पॉपअप जनरेट होगा। Here we get some recently models, okay? This model 1, model 2, different models are there, okay? Previous 4 models are there, okay? यहाँ पे आपको 4 models ही मिलेंगे। This is new model and this is open existing model, okay? So हम पर्टिकुलर मॉडल को ओपन करते हैं। Okay, they were a state model, sorry, ETF model. And this is our fixed plan. So this is ground floor. Here you get plan option. Okay. So first we will start with the plane beam. We get like this. Okay. So this is our plane beam. यहाँ पर जिसे आर्किटेक्चरल प्लान में देख रहे हो सेम थिंग यहाँ पे आपको ETH model में मिलता है। So what is the benefit of plane beam and importance of plane beam? By using plane beam, we are trying to connect our columns. So
बिकॉज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका फाउंडेशन से आपका कॉलम स्टार्ट हो गया और डायरेक्टली आपके फर्स्ट फ्लोर पे आपका स्लेब रहेगा, और यहाँ पे बीच में अगर हम प्लिंथ बीम नहीं प्रोवाइड करते हैं, सो द लेंथ ऑफ दिस कॉलम टू मच हाई, ओके, ये बहुत ज़्यादा रहेगी, सो इट विल बी ट्राई टू बकलिंग to avoid this failure of column. What we can do, we will provide one additional beam called as a plinth beam. Okay, so mostly we will provide plinth beam to connect our column. So यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एडिशनल हमने बीम रखा है, so इसकी कुछ नीड्स ही नहीं है। लाइक यहाँ पे आप आर्किटेक्चर में देखोगे, so यहाँ पे हमने कोई कॉलम रखा ही नहीं। यहाँ पे हमने कॉलम्स रखा है, बीम रखा ही नहीं है, बट टू कनेक्ट दिस टू कॉलम वी नीड टू प्रोवाइड टाई बीम। ओके, और ये हमारा पर्टिकुलर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, सो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे भी आपका स्ट्रक्चर रहेगा, और सेम वी हैव सम आर्किटेक्ट वॉल्स। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रोवाइड बीम्स एट अ पर्टिकुलर वॉल लेवल। लाइक यहाँ पे आपकी वॉल्स आएगी, यहाँ सब जगह पे आपकी वॉल्स आएगी, सो यू नीड टू प्रोवाइड beam exactly below your staircase. So this is our plinth beam, and this is our first floor plan. So if you click here, move up in list, so here you get a first floor plan, and this thing is our staircase, and then this is our opening called as OTS. यहाँ पे भी सेम टॉयलेट के लिए नहीं, यहाँ पे OTS रखा, ओके, and then this is our bedroom, अटैच टॉयलेट, सेम यहाँ पे आपको अटैच टॉयलेट मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको एंट्री, सेम एंट्री, दिस इज आपका लिविंग रूम, किचन एंड डाइनिंग एंड पोर्च, एंड दिस इज बालकनी। ओके, यहाँ पे एक एलिवेशन में देख सकते हो, आपका ये जो लिविंग रूम की बालकनी है वो बाहर निकल रही है, इतने यहाँ पे देख सकते हो। और ये आपकी जो टॉयलेट, सॉरी, किचन और पोर्च वाले बालकनी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ पे आपको बालकनी यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, देन मूव अप सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर प्लान है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, मास्टर बेड से बाहर आपकी बाल पोर्च निकल रहा है, तो इस तरह से आपका पोर्च यहाँ से बाहर निकलेगा, एंड देन दिस टेरेस केबिन, ओके, लुक लाइक दिस। यहाँ पे आपको टेरेस केबिन मिलेगी, यहाँ पे आपको क्लब हाउस एक रूम रहेगा, और यहाँ पे टॉयलेट, सेम स्टेयरकेस, एंड दिस ओपन टेरेस, एंड एट अ टेरेस केबिन लेवल ओनली कितना पार्ट आपका रहेगा। ओके, सो दिस इज आवर ongoing वर्क प्रोजेक्ट, एंड दिस इज 3D व्यू। इस तरह से आपका मॉडल रहेगा। आप इसको कंपेयर करना चाहते हो के साथ, आप कर सकते हो, लाइक ओके, तो विल कंपेयर अवर एलिवेशन। सी यहाँ पे आपकी बालकनी बाहर निकल रही है इतनी, सो सेम थिंग यहाँ पे लिविंग रूम में आपका बालकनी बाहर निकलेगी, दिस इज पोर्च, एंड यहाँ पर इतना आपका पोर्च रहेगा। ओके,
देन इतनी बर्फ नहीं बाहर निकलेगी, सेम थिंग यहाँ पे इतनी बाहर निकलेगी। और ये आपका बेडरूम की वॉल्स रहेगी, इसके ऊपर आपका टेरेस रहेगा, और यहाँ पे आपका टेरेस केबिन है। वी कॉल एज अ क्लब हाउस, आपने जो देखा था आर्किटेक्चर प्लान पे। सो दिस इज अवर प्रोजेक्ट 1। Now we will discuss about project 2. This is commercial structure. Okay. This is our another project. This is a residential कम commercial project. यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा हम इसको पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल बेस पे यूज करेंगे, एंड देन रिमेनिंग 2 floors are useful for residential. Okay. So this is our architectural plan. Okay. This is particular ground floor. All the beams are there. यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलरली हमने एडिशनली 2 कॉलम्स असाइन किया है, दिस वन एंड दिस वन, समवेयर हियर। तो बेनिफिट ऑफ दिस 2 कॉलम्स टू कनेक्ट स्टेयर। ओके, स्टेयर के लिए हमने ये पर्टिकुलर 2 कॉलम यहाँ पे असाइन किया है। ओके, देन दिस पर्टिकुलर पार्किंग एरिया, तो ये फुल्ली पार्किंग के लिए रहेगा। Then this is our first floor, only useful for our industrial work. Okay. This is our first floor. If you click any slab, so here you will get a 1.5 times dead load and a 5 times live load. So, live load as per Indian standard code. Okay, we need to assign a 5 kilonewton per meter square. Okay, to support machinery and all the things. In subsequent lecture, we will discuss about different loads and the load value. Okay, and this is our sunk area. This is welded area. So here we provide a 4.5 times superimposed dead load and 2 times live load. Okay, यहाँ पे लाइव लोड क्यों कम हो गया और डेड लोड क्यों ज़्यादा हो गया वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। Now this is our second floor. That means यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल रहेगा। These 3 beds are there. Bed 1, bed 2, bed 3. So bed 1, bed 2, bed 3. This is our living room, dining room. This is kitchen. Okay, and some toilets. Okay, and some openings are there. Okay, यहाँ पे opening और यहाँ पे आपकी स्टेयर है। Okay, if you go above like a third floor, okay,
सो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट प्लानिंग सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. बेडरूम्स एंट्री इज डायरेक्टली फ्रॉम स्टेयरकेस. Look like this. Look like this. So only distance and rest of the thing is same. Now go to cabin floor. This is terrace floor, terrace slab, and this is terrace cabin. Okay, if you see more realistic view, और प्लान लुक लाइक दिस. आपको इस तरह से कुछ आपका प्लान और 3D रिलेशन मिलेगा. ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस. यहाँ पे आपको पर्टिकुलर बीम्स मिलेंगे, लाइक this one at some middle level. This is the landing level, जहाँ पे हम स्टेयर्स रखेंगे. तो ये आपका स्टेयर का पार्ट है जहाँ पे हम लैंडिंग लगाएंगे. ठीक है. एंड देन आवर लास्ट प्रोजेक्ट, हाईराइज स्ट्रक्चर. Hardly it will take 5 to 10 minutes. Okay. And highlight structure, we will also discuss about response spectrum analysis, time history analysis, wind load analysis, and assigning wind load as per our IS 875 latest लोड प्रोविजन. राइट, आपका जो कोड प्रोविजन रहेगा लेटेस्ट कोड प्रोविजन, उसके बेसिस पे हम मॉडलिंग करेंगे और लोड असाइन करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन माय लेफ्ट स्क्रीन दिस इज प्लान व्यू, इन माय राइट स्क्रीन दिस इज आवर 3D व्यू. दिस इज पर्टिकुलर सेम. यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम रहेगा आपका. दिस इज बेड 1 एंड दिस इज बेड 2. दिस इज किचन एंड यहाँ पे आपका पोर्च रहेगा. ओके, दिस इज स्टैंडिंग बालकनी SB and toilets, and this is again balcony, and this is attached. This is ये opening रहेगा, right? और same this is standing balcony. इसका मिरर इस साइड है. Okay, so we'll check plinth level. Okay, so यहाँ पे आप देखोगे the connectivity between two beams, that means two columns are different. यहाँ पे देखोगे तो इंक्लाइन कॉलम टू कॉलम ने यहाँ पे इंक्लाइन बीम दिए हैं. सो दैट डजंट मीन कि स्ट्रक्चर गलत है. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रोवाइड कॉलम टू कॉलम वन बीम टू कनेक्ट एंड टू सपोर्ट योर कॉलम. सो जहाँ पे आपका लोड्स नहीं आ रहा वहाँ पे हमने डायरेक्टली इस तरह से कॉलम टू कॉलम बीम कनेक्ट किए हैं. ठीक है. तो दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, बिकॉज यहाँ पे आपकी लिफ्ट रहेगी और यहाँ पे आपकी स्टेयर रहेगी. सो वी नीड टू प्रोवाइड बीम्स लुक लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज आवर फर्स्ट फ्लोर.
एंड ऑलमोस्ट ऑल द फ्लोर्स आर सेम, यहाँ पे सब फ्लोर सेम ही रहेंगे. If you want to see the more realistic view, राइट क्लिक, सेट सिस्टम विजिबिलिटी. सो आपको यहाँ पे ग्रिड्स ऑटोमेटिक आपकी हाइड हो जाएगी. नाउ क्लिक ऑन रिव्यू. तो इस तरह से आपको रिव्यू मिलेगा. ओके, इस तरह से हमारा आया स्ट्रक्चर रहेगा. And this is a various design which is given by RCDC. So we'll see only footing design. Using time limitation, यहाँ पे हम footing की डिजाइनिंग जो हमें RCDC में से मिलेगी वो चीज़ हम यहाँ पे शो देखेंगे. So this is the footing layout which is given by RCDC. So यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा. Okay, from this, through the RCDC you will get the size and positioning of your footing, depth of footing, all the things. Okay, if you want to see the detail drawing, if you look at this, यहाँ पर आपको डिटेल ड्राइंग मिलेगी. सो आपको इस पर साइट को सेंड करना है. साइट पे आप इस ड्राइंग को डायरेक्टली सेंड कर सकते हो. इट्स इजी टू यूज एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. आपको इसका सेक्शन भी मिलेगा इस तरह से. ओके, एंड ऑल द थिंग्स आर देयर. रेनफोर्समेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टली रेनफोर्समेंट आपको मिल जाएगी डायरेक्टली, राइट. टॉप एंड बॉटम. This is section 1.1, this is section 2.2, and this is plan view. यहाँ पर जो ये प्लान दिख रहे हो और यहाँ दोनों सेम है. By using the software, you can prepare your footing layout and details within 5 to 10 minutes, right? This is your output, and this is our footing size and calculation. So this is our footing schedule. Like आप इसे डायरेक्टली साइट पे भी सेंड कर सकते हो. डायरेक्टली प्रिंट इसको सेव करके इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, राइट, AutoCAD में जाके. So it's a very useful and important software. तो इस तरह से आपको फुटिंग की डिजाइनिंग, कॉलम की डिजाइन, बीम डिजाइनिंग एंड स्लैब डिजाइनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सब डिजाइनिंग करनी पड़ेगी. बट इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स फॉर पर्टिकुलर वन स्ट्रक्चर. ओके, so within 1 to 2 hours you can design your structural member by using RCDC. And in depth we will discuss about the SAFE 2016 RAF foundation for particular some importance area. Like आपके बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, some lifts are there. तो क्या होगा, यहाँ पे दो कॉलम के बीच के स्पेसिंग भी कम होगा. और यहाँ पे जब आप इंडिविजुअल फुट में रखोगे तो इट विल ट्राई टू ओवरलैप. So to avoid this overlap, we are going to provide only one footing. We call it the RAF foundation. So this is all about today presentation. अभी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो. कुछ डिस्कस करना हो तो आप बात कर सकते हो.
किसी को कुछ डाउट्स है? हेलो, अभी तक तो नहीं, जितना मैंने सुना। ओके। आ, आपको कुछ भी डाउट्स तो आप पूछ सकते हो, और आपको ऐसे बात करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मैसेज में भी टाइप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के स्टेप्स आप ही बोल को दियोगे क्या? हाँ, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको ईटेक्स, आरसीबीसी, सेफ, ये सब सॉफ्टवेयर आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगी आपको, और विथ इंस्टॉलेशन गाइड। आपको वहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड भी तो मिल जाएगी। डाउनलोड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ स्पेसिफिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन लगेगा या फिर सॉरी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए स्पेसिफिक कोई कॉन्फ़िगरेशन लगेगा? नहीं नहीं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँ, गूगल ड्राइव रहेगा, गूगल ड्राइव में से आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। डेस्कटॉप पर भी I couldn't करेगा get क्या? you. So can you please repeat? I will share you the link from Google Drive. Okay, then you Okay, can okay, I download understand. software Okay. from Google Drive, and installation guide will provided by YouTube, where you can follow the steps and install your software. Okay, okay. If I'm facing any problem for downloading the software, then Then you can who contact us. will help me? Okay, okay, You can contact us. okay, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। okay. Thanks. Can we do it on the computer also? डेफिनेटली, सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में से इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। Okay. Okay, thank you. So is this section is over? सॉरी, Is this session is over? Can we leave? यस यू कैन लीव। Okay, thank you everyone. ओके, आई थिंक किसी को कुछ डाउट्स तो नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, अगर ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।